इंटरनेट काफी बड़ा है, एक ऐसी जगह जहां हम सब आंसर्स ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमें ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देता है जिनका कोई जवाब नहीं होता। मिस्टीरियस कोड्स, हिडन वेबसाइट्स और अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस। आज हम बात करेंगे इंटरनेट की कुछ सबसे ज्यादा क्रीपी और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की। हेलो फ्रेंड्स, स्लूथ ट्यूबर हियर। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे सिकेडा 3301, एक ऐसी पजल जो शायद एक सीक्रेट सोसाइटी का इनविटेशन थी। लेक सिटी क्वाइट पिल्स एक हिडन नेटवर्क जो असैसिन्स के लिए था। मरीना जॉयस की डिसअपीयरेंस की अनएक्सप्लेन्ड स्टोरी और वेब ड्राइवर टोरसो एक ऐसी यूट्यूब मिस्ट्री जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया। सो बकल अप, क्योंकि हम घुसने वाले हैं इंटरनेट के सबसे डार्क रैबिट होल्स में। वेलकम टू चैनल नेम, और ये है अनसॉल्व्ड इंटरनेट मिस्ट्रीज, द डार्केस्ट रैबिट होल्स। Picture this 2012, the internet is still finding its feet, memes were just babies, it was a simpler time, a time when the digital world was still in its adolescence, exploring its boundaries and potential. और अचानक से एक image 4chan पे pop up होती है. We are looking for highly intelligent individuals. This message was not just any ordinary post, it was a call to arms for the brightest minds on the internet. Simple, straightforward, लेकिन ये था starting point एक ऐसे mystery का जिसका नाम है Cicada 3301. This was the beginning of a journey that would captivate and baffle the online community for years to come. ये कोई normal internet puzzle नहीं थी भाई, ये तो next level stuff था. It was a challenge that required not just intelligence but creativity, perseverance, and a deep understanding of various fields. Cryptography, steganography, ये सब words तो आपने सुना होगा, पर क्या आप जानते हो ये क्या होते हैं? These are the tools of the trade for those who delve into the world of hidden messages and secret codes. Cicada 3301 में ये सब यूज हुआ था, real life clues, hidden messages, or puzzles within puzzles. It was a multi-layered enigma that required solvers to think outside the box and connect dots that were not immediately visible. Imagine trying to solve a Rubik's Cube, but each square is another Rubik's Cube. The complexity was mind-boggling and it pushed the boundaries of what was thought possible in an online puzzle. और ये सब क्यों? Theories थीं कि ये किसी secret society का recruitment process है. Some believed it was a way to find the best and brightest for a cause that was shrouded in secrecy. Imagine आप puzzle solve करते हो, और अचानक से आपको invite मिलता है एक ऐसे ग्रुप में जिसके बारे में कोई नहीं जानता. The thrill of the unknown, the allure of being part of something bigger, something mysterious. Exciting है ना? पर डर भी लगता है क्योंकि कोई नहीं जानता था Cicada 3301 के पीछे कौन है. The fear of the unknown, the possibility of danger, it all added to the mystique of the puzzle. क्या ये hackers हैं, government agency, या फिर कोई और? The mystery remains unsolved. Speculations ran wild, with some suggesting it was a government recruitment tool, while others believed it was the work of a rogue group of hackers. क्या आप में है ये puzzle solve करने की हिम्मत? Do you have the courage, the intellect, and the perseverance to take on such a challenge? सोचो, अगर आप ये puzzle solve कर लेते, तो आपकी life कैसी होती? आप कहाँ होते आज? Comments में जरूर बताना. Imagine the possibilities, the doors that could open, the paths that could unfold. Share your thoughts in the comments below. 2009 Reddit का जमाना शुरू हो रहा था. Reddit एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां लोग अपने विचार, मीम्स और कहानियां शेयर करते थे. ये एक डिजिटल कम्युनिटी बन गया था जहां हर तरह के लोग आते थे. और एक यूजर था रिलीजन ऑफ पीस, जो बार बार एक वियर्ड फ्रेज यूज करता था, लेक सिटी क्वाइट पिल्स. ये फ्रेज सुनने में जितना अजीब था उतना ही इंट्रीगिंग भी था. Nobody knew what it meant. कुछ लोगों ने सोचा ये कोई इनसाइड जोक होगा. Reddit पर ऐसे कई इनसाइड जोक्स होते हैं जो सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं. लेकिन फिर रिलीजन ऑफ पीस की डेथ हो गई. उनकी डेथ ने Reddit कम्युनिटी को शॉक कर दिया. लोग उनके बारे में बातें करने लगे और उनके पुराने पोस्ट्स को रिविजिट करने लगे. अब ये तो और भी क्रीपी हो गया ना. उनकी डेथ के बाद लोग और भी क्यूरियस हो गए कि आखिर ये लेक सिटी क्वाइट पिल्स क्या है. यूजर्स ने उसके कमेंट्स को स्कैन करना शुरू कर दिया और पता चला कि उन्होंने एक हिडन मैसेज छोड़ा था. ये मैसेज बहुत ही क्रिप्टिक था और लोगों को और भी इंट्रिग्ड कर गया. ये मैसेज लीड करता था एक वेबसाइट की तरफ जिसका नाम था, आपने सही गेस किया, लेक सिटी क्वाइट पिल्स. ये वेबसाइट देखने में बहुत ही मिस्टीरियस और डार्क थी, पर यह वेबसाइट कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी. ये वेबसाइट देखने में ही कुछ अलग लग रही थी, जैसे इसमें कुछ छुपा हो. ये तो एलिजिडली मतलब सुन लो, एक मार्केट प्लेस थी असैसिन्स के लिए. लोग कहते हैं कि यहां पर असैसिन्स को हायर किया जा सकता था.
इमेजिन हिट्स बीइंग ऑर्डर्ड ऑनलाइन, जैसे आप स्विगी से बिरयानी ऑर्डर करते हो। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये सच में एक असैसिन नेटवर्क था? रेडिट यूजर्स के बीच ये सवाल गूंजने लगा। या फिर कोई मॉर्बिड प्रैंक? कुछ लोग मानते थे कि ये सब एक एलैबोरेट प्रैंक था, लेकिन कुछ लोग इसे सच मानने लगे थे। वेबसाइट तो गायब हो गई और कोई प्रूफ नहीं मिला। ये और भी मिस्टीरियस बना देता है इस पूरी कहानी को। लेकिन सोचो, क्या हो अगर ये सच में एग्जिस्ट करता था? क्या हो अगर ये सच में एक असैसिन नेटवर्क था जो अब भी कहीं छुपा हुआ है? कितना स्कैरी थॉट है ना? ये सोचकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रेडिट की दुनिया में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं और लेक सिटी क्वाइट पिल्स उनमें से सबसे इंट्रीगिंग है। Chapter 3: The Disappearance of Marina Joyce, Lost in the Internet Void. Chapter 4: Web Driver Torso, The Glitch in the Matrix। और अब बात करते हैं एक ऐसे मिस्ट्री की जिसको देख के YouTube के वेटरन्स के भी पसीने छूट गए थे। वेब ड्राइवर टोर्सो। इमेजिन आप YouTube स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से आपको एक वीडियो दिखता है, रेड एंड ब्लू रेक्टेंगल्स और एक वियर्ड बीपिंग साउंड। ये कोई आम वीडियो नहीं था। 11 सेकंड्स का वीडियो और फिर खत्म। ये था वेब ड्राइवर टोर्सो। ये वीडियोस इतने शॉर्ट थे कि आप ब्लिंक भी करो तो मिस हो जाएं। हंड्रेड्स ऑफ ऐसे वीडियोस, सेम पैटर्न, नो एक्सप्लेनेशन। हर वीडियो में वही रेड और ब्लू रेक्टेंगल्स, वही बीपिंग साउंड और वही शॉर्ट ड्यूरेशन। थ्योरीज तो बहुत बनी। कुछ लोगों ने कहा ये CIA का सीक्रेट कम्युनिकेशन चैनल है, एक ऐसा चैनल जो सिर्फ कोड्स भेजने के लिए यूज होता है। कुछ ने कहा एलियंस का मैसेज है। ये वीडियोस किसी दूसरे ग्रह से आए सिग्नल्स हो सकते हैं। फाइनली गूगल ने बोला कि ये उनका इंटरनल टेस्टिंग चैनल है। उनका कहना था कि ये वीडियोस YouTube की क्वालिटी चेक करने के लिए बनाए गए थे। पर क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई करता है? इतना वियर्ड टेस्टिंग? क्या सच में गूगल को ऐसे क्रिप्टिक वीडियोस की जरूरत थी टेस्टिंग के लिए? ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगता। ये एक्सप्लेनेशन कुछ अधूरा सा लगता है। वेब ड्राइवर टोर्सो एक ऐसा मिस्ट्री जो आज तक अनसॉल्व्ड है। इतने थ्योरीज के बावजूद कोई भी पक्का नहीं कह सकता कि सच में ये वीडियोस क्यों बनाए गए थे। क्या ये सच में गूगल का टेस्टिंग था, या फिर ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पाए, या फिर कुछ और? आप क्या सोचते हो? क्या ये सच में एक ग्लिच इन द मैट्रिक्स था, या फिर कुछ और ही कहानी है इसके पीछे? द एंड और इज इट? तो ये थे कुछ सबसे क्रीपी अनसॉल्व्ड इंटरनेट मिस्ट्रीज। आपको कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग लगी? और क्या आपके पास कोई और इंटरनेट से जुड़ी हुई मिस्ट्री है जो हम एक्सप्लोर कर सकें? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल नेम को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और मिस्ट्री के साथ। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे मिस्टीरियस।